This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. Cancer Healer Center, a new beginning. আর এবার সরাসরি ছবি দেখাবো আপনাদের। মহাকুম্ভে পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই মুহূর্তে সরাসরি সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন TV9 বাংলায়। প্রয়াগরাজে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজই মহাকুম্ভে পুণ্য স্নান করার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। এই মুহূর্তে সরাসরি সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। মহাকুম্ভে পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজই পুণ্য স্নান করার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। পুণ্য স্নানের পর সাধু সন্তদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। কুম্ভ মেলার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা নিয়েও প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন নমো। একদিকে আজ দিল্লিতে নির্বাচন চলছে, আর অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মুহূর্তে পৌঁছে গিয়েছেন মহাকুম্ভে। আজই সঙ্গমে পুণ্য স্নান করার কথা রয়েছে তার, আর খানিক পরেই তিনি পুণ্য স্নান করবেন। দিল্লিতে নির্বাচনের দিনই মহাকুম্ভে পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ সাধু সন্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, তারপর দুপুরে দিল্লিও ফিরে আসবেন প্রধানমন্ত্রী। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যোগী আদিত্যনাথ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি মহাকুম্ভে পৌঁছে গিয়েছেন। প্রয়াগরাজে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাকে স্বাগত জানালেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আজই দিল্লিতে নির্বাচন চলছে, আর আজই মহাকুম্ভে পুণ্য স্নান করবেন মোদী। পরে দুপুরের দিকে তিনি আবার দিল্লিতে ফিরে আসবেন। মোদীর সফরকে ঘিরে প্রয়াগরাজে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর কিছুক্ষণ পরেই পুণ্য স্নান করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গমে পুণ্য স্নান করবেন তিনি, সাধু সন্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। কুম্ভ মেলার সামগ্রিক যে ব্যবস্থাপনা সেটাও খতিয়ে দেখতে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন তিনি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি প্রয়াগরাজে পৌঁছে গিয়েছেন, মহাকুম্ভে পৌঁছে গিয়েছেন। তাকে অভ্যর্থনা জানালেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আর খানিকক্ষণ পরেই পুণ্য স্নান করবেন প্রধানমন্ত্রী, তারপর সাধু সন্তদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন, তারপর প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও সারতে পারেন। हो जाएंगे अरेल के वीवीआईपी घाट से प्रधानमंत्री लगभग 12-14 नाव के काफिले में इस वक्त सवार है। बीच में प्रधानमंत्री का नाव चल रहा है और उसके चारों तरफ एसपीजी ने नाव पर सवार होकर बिल्कुल सुरक्षा के जिम्मे को संभाला है। और सिर्फ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का जहां संगम होता है उसको नो बोट जोन घोषित किया है। बल्कि इस वक्त जब प्रधानमंत्री खुले आसमान के नीचे मां गंगा में विचरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो इस पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का जो नाव है अब वो इस प्लेटफॉर्म पर मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है निशांत, और अब नाव को पार्क किया जा रहा है। यहीं पर वो उतरेंगे। यहीं पर साधु संत पुरोहित उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। विशेष इंतजाम किया गया है और इसके बाद यहां आगे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हालांकि बहुत शॉर्ट प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री आए हैं और प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि महाकुंभ में वो मां गंगा में स्नान करें, लेकिन बहुत कुछ ऐसा प्रयागराज में हुआ जिसके बाद उनके कार्यक्रम में ये माना जा रहा है। और सोर्सेस हमें ये कह रहे हैं कि कई परिवर्तन किए गए हैं। पहला ये कि संगम नोस की तरफ आने वाले लोग जो लगभग 20-25 घाट है उस पर नहाने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। शहर में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को, पैदल चलने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। यही वजह है कि विशेष विमान से एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड और हेलीपैड से विशेष जेटी में सवार होकर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। गंगा के एक किनारे प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, दूसरे किनारे को टच भी नहीं करेंगे। घाटों पर, सड़कों पर, शहर में आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की समस्या ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। बहुत छोटा कार्यक्रम रखा गया है। साधु संतों से मुलाकात, गंगा का पूजन, स्नान, आचमन, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में प्रधानमंत्री करेंगे। और मां गंगा से उनका पुराना लगाव है और यह लगाव समय समय पर दिखता है। जब भी प्रधानमंत्री वाराणसी जाते हैं
तो आमतौर पर ऐसा ज्यादातर मौकों पर हुआ है निशांत की वो शाम की आरती में जरूर शरीक होते हैं और वो कहते भी हैं कि मां गंगा ने मुझे बुलाया और भर भर कर प्यार मां गंगा का उनको मिला है। तीसरी बार वाराणसी जैसी लोकसभा से वो रिकॉर्ड वोटों से चुनकर सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं और आज एक बार फिर से गंगा में स्नान करने का ये मौका और इस विशेष मुहूर्त और इस विशेष मौके के लिए प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है और मैं देख पा रहा हूं कि गंगा में किस तरह से साइबेरियन बर्ड्स इस वक्त उड़ान भर रही हैं जो अपने आप को और मनोरम दृश्य बनाता है। Cancer Healer Center, a new beginning.